Namaskar to all of you. I am Justice Narasimha Reddy, former Chief Justice of Patna High Court. He is Mr. Rajpal Singh, former AG of Haryana. ये हमारा व्यास जी है ओपी ओम प्रकाश व्यास, expert in human rights field, and Madam Bhavana Bajaj. She also heads an NGO and woman activist and lawyer भी है. And we are also assisted by two eminent social workers, Aparna ji and Abhijit ji. Mr. Sanjeev Naik, one of our members who was part of the team and who has also come here, left because his flight is a bit early. Now to start with, all of you are aware, this is the fifth visit by our committee. We have been visiting the entire state, different parts of the state, covering various issues, be it violation of human rights or the violence, post-poll violence, or the demolition of temples or the desecration of some of the religious places. Last week, we came here to visit Sandesh Kali, but you know, our team was stopped halfway through, even before we crossed the limits of Kolkata city. There was no restriction at that place. 144 was imposed just one day earlier in Sandesh Kali. We told the police that we will not violate any norms of 144, and if necessary, we will go in teams of 1 or 2. But even then, high-handedly the police arrested us and took us to Lal Bazar police station. It was very unfortunate and high-handed, and no system can support that type of high-handed action. We squarely hold the police administration and in particular the Director General of Police for such high-handed action. One more thing is, even at that place, everybody was moving freely. All types of vehicles, individuals were moving. But only they identified us and arrested us. That is the level of oppression in the state of West Bengal. It deserves to be condemned. What is more gratifying is that when this was taken to the Honorable High Court, to a writ petition, an order was passed, whereunder our team was permitted to visit the 3 places. We have covered those 3 places and have interacted with the victims. In the first visit to the Majirpara, quite large number of women came there and revealed their grievances. The general complaint is that a mafia, something like a mafia, headed by Shahjahan Sheikh and assisted by Shibu Hazra and Uttam Sardar, they indulged in grabbing of the lands of innocent people. Even shops that were constructed with their own money and labor, they were also snatched, only on the ground that they did not pay the contribution to the ruling party, and the shops, some of the shops were even sold to third parties. Another allegation is that the land that was grabbed by these persons was converted into pieces, and the team, that is the land grabbers, have sold it to some innocent persons. What is more startling and horrifying is that once these women, unable to bear or put up with the high-handedness of these persons, raised their voices, an incident was taken as a basis for arresting the husbands of the ladies, or even in some cases the ladies also. In one FIR, 111 persons were implicated and another 74. Fortunately, all of them are said to have been granted bails or were set free, but the fear still subsists. All of you need to take one fact into account.
The issue was raised about 2-3 weeks back. Even in assembly it was raised. We have seen right in the floor of the assembly, the Honorable Chief Minister said that nothing wrong has taken place in Sandesh Kali and the allegations are being made just on political lines and with motivation. Yes, there may be some justification in making such statements. Everybody would have been happy if what the Honorable Chief Minister said is correct. But few days later on, it emerged that the state itself has received about 400 complaints of land grabbing within Sandesh Kali, and out of them, nearly 150 persons were restored their lands and documents. So if the statement of the Honorable Chief Minister is correct, that nothing has happened, where was the occasion or necessity to return those lands? It only falsifies the version put forward in the assembly. This is one part. In the press as well as outside also, the picture was being painted as though some motivated allegations are being made and nothing wrong had occurred to the woman or to the other landowners. All that was proved to be wrong, and with each passing day, the things are coming out. The most important turning point is the arrest of the person who is behind all these things, Shahjahan Sheikh. When press in one voice was asking where is Shahjahan and why is he not arrested, the country, the state and police administration was feeling ignorance. But once the Honorable High Court intervened and said that he must be arrested, and the Honorable Governor also said that within 72 hours the person should be arrested, then came the person. And we have seen that normally whenever a person, or ordinary person or respectful person, if he is arrested, either he will cover face or he will feel a bit sorry or they feel shy. But here he was a person who was, as though he has been a gold medal in the Olympics. He was walking just like as a hero. That only shows that all through he had the support of the state missionary to hide for 55 days and left with no alternative. The state administration has arrested him. We only hope that all other culprits will be brought to book and justice will be done to the victims within Sandesh Kali. We have also been informed that there are more Sandesh Kalis in West Bengal. Only here the people have gained courage to oppose the oppressive actions, and this should be an encouragement or a source of inspiration for others to revolt against any illegal activity by whoever he may be concerned. The details from the victim woman in the sexual harassment cases, it was really unfortunate. The duly following the norms that are stipulated to be followed in this behalf, we requested our woman member Bhavna ji to interact with, duly maintaining full confidentiality. Neither names will be revealed nor any other identification will be, but the nature of the harassment that was meted out to them, she will reveal. I request her to थैंक यू सो मच। speak to you. नमस्कार, मेरा नाम भावना बजाज है और मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन और एनसीपीसीआर में कंसल्टेंट रही हूँ। बच्चों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, हम शुरू से ही कर रहे हैं ये काम। तो मैं कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम से कम 20 महिलाओं से, जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। तो 70 साल की महिलाएं हैं, वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक जगह पर मैं अकेली गई थी, किसी कैमरा पर्सन को उस समय नहीं ले गई थी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है महिलाओं की। एक महिला जिसके बारे में पता चला है
उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देख कर आए हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहाँ से चला गया है। ये मेरी बिल्कुल विनम्र आप लोगों से प्रार्थना है, किसी भी महिला का अगर आप चेहरा दिखाएं तो उसको ब्लर कीजिए। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। वो रात को जब भी उनके पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको बुलाते हैं, रात भर रखते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि क्या एक से ज्यादा महिलाओं को रखते हैं, तो एक महिला ने बोला जब ये शिकार करते हैं ना, तो किसी एक को चंगुल में लेते हैं, बाकी को भेज देते हैं। और वो महिला को इतना धमका के भेजते हैं, वो ये वर्ड बोलती है कि हमें मनोरंजन करने के लिए बोला गया है। वो बलात्कार, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे शब्द मुंह से ही नहीं निकाल पाती, पर उसके शरीर की चोटें जो हम देख कर आए हैं, जो उसके आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है। और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। मतलब ये सब हमने फिल्मों में सुना था, देखा था, पर ऐसा असल में होता है वो नहीं मालूम था। जब भी ये किसी को कंप्लेंट करते हैं, वो बोलती है पुलिस के पास तो हम कंप्लेंट करने जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सुनता नहीं है। और फिर ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारे को जो भी स्कीम मिल रही है, जो भी राशन मिल रहा है, वो सब बंद कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, हम शहरों में रहते हैं, हमारे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये महिलाएं कैसे वो भुगत रही थी। और मैं बिल्कुल दिल से इन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, शाबाशी देना चाहती हूँ। मैंने उनको यही बोला है कि आप लोग एकजुट रहिए। अब आप बाहर निकल आई हैं, कम से कम आपकी अगली जनरेशन बच जाए। और इस पर जो भी आप बोल रही हैं, उस पर एक मत रहिए। वो बोले कि 5 महिलाओं ने स्टेटमेंट दिया है। मैंने बोला अगर 5 ने भी दे दिया, वो 5 भी हिम्मत करके आगे आ जाती हैं उन 20 से। ये 20 तो यहाँ मुझे मिली हैं, जाने अभी तो जहाँ 144 है वहाँ हम गए नहीं हैं। तो वो कितनी वो संख्या होगी। अगर 5 भी खड़ी होकर स्टेटमेंट दे देती है तो मेरे को लगता है कि मैं उनको दिल से सैल्यूट करूंगी। थैंक यू। मैं राजपाल सिंह, फॉर्मर आईजी पुलिस हरियाणा कैडर से हूं। और मैं जैसे जज साहब ने बताया है, इनके साथ हमने सारी विजिट्स की हैं। जो लास्ट विजिट हमारी थी, जो नहीं हो सकी, उसमें बहुत ही सनसनीखेज इश्यूज आ रहे थे। और हम जब उसकी सीक्रेट और ओपन इंक्वायरी के लिए आ रहे थे, तब आप समझ सकते हैं कि स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटेक्टेड बदमाश कितने प्रभावी थे कि बदमाशों को अरेस्ट करने की बजाय हमारा रास्ता 55 किलोमीटर पीछे रोक दिया। हमारे को डिटेन करके लालगढ़ पुलिस स्टेशन ले गए और हमारे को नहीं आने दिया। लेकिन उससे हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन इशू करी और डायरेक्शन से नहीं आई, उसका प्रेशर माउंट हुआ। जो पुलिस एक्शन नहीं कर रही थी, जो पुलिस बदमाशों के साथ, लैंड ग्रैबर के साथ और क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जो प्रेशर आया और जिनके साथ उन कंप्लीमेंट्री गेम चल रहा था, उसको अरेस्ट करना पड़ा। अरेस्ट करने के बाद हाई कोर्ट में जब हमने अप्रोच किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप 3 जगह जा सकते हैं, बाकी पर 144 है। जो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, क्या 144 की कोई थ्रेटनिंग है? हम तो केवल इंक्वायरी करने आ रहे थे। पुलिस को इतना भय क्यों था कि अगर हम विक्टिम से मिले और विक्टिम्स को एग्जामिन किया तो वो कौन सी बातें हैं जो पब्लिक के सामने आने जो रोकना चाहते हैं। लेकिन कैट इज आउट ऑफ बैग। अब जो शाहजहान शेख है, उसको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया है कि पुलिस का बिहेवियर उसके साथ कंप्लीमेंट्री था। उसका जो फेस था अरेस्ट होने के बाद, उसकी जो चाल उसका चल रहा था, वो इतना कंप्लीमेंट्री था कि वो फ्रेंडली गेम चल रहा था।
और दी हाइट, हमारे को तो जाने से रोका, उन लोगों ने ईडी का अफसरों के ऊपर तो हमला ही करवा दिया। लेकिन बात यहां रुकी नहीं, शाहजहान शेख अरेस्ट हुआ है और इसके साथ ही शिबू हाजरा जिसका भी जिक्र आया है, उत्तम सरदार जिनका जिक्र आया है, इसके अलावा मेरे पास ये 11 आदमियों की लिस्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कर रहे हैं लेडीज को और शरीफ लोगों को, थ्रेटनिंग लगातार कर रहे हैं कि वो मीडिया को कुछ ना बताएं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी ना बताएं और ये तो चले जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी सपोर्ट कितनी है, आपका भय कितना है। मीडिया का जो रियलिटी का एक्सपोजर है वो नेशनल वाइड, उसका इम्पैक्ट क्या है। ये केवल मीडिया है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी मीडिया के थ्रू अप्रोच कर रही थी। मीडिया है जिसके कारण उसको कम्प्लीमेंट्री गेम के साथ अरेस्ट करना पड़ा और बाकी भी ये सारा रहेगा। आप लोग एक पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भी, न्याय के भी। मैडम भावना ने जो बात बताया बिल्कुल ब्रीफ में बताया, डिटेल जो है वो अब ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में मिस्टर ओपी व्यास जो है वो बताएंगे। मैं फॉर्मर जॉइंट रजिस्ट्रार लॉ हूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं। मानव अधिकार आयोग में 27 वर्ष तक कार्य करने के दौरान मैंने लाखों कंप्लेंट्स बंगाल की देखी हैं, लेकिन जो विभत्स नजारा मानव अधिकारों का जो हनन जो है व्यापक पैमाने पे या अब देखने को मिला है। मानव अधिकारों का हनन यहाँ के विक्टिम्स को, यहाँ के पीड़ितों का ही नहीं हुआ, मानव अधिकारों का हनन हमारा भी हुआ। जिस देश में रूल ऑफ लॉ चलता है, जो जिस सिविल सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, बिना किसी कानून की धज्जियां उड़ा करके हम लोगों को रोका गया आने के लिए, अनलॉफुली हमको अरेस्ट किया गया, इलीगल हमारी अरेस्ट हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे बंगाल की जनता को यह कहना चाहता हूं कि यहाँ की पुलिस का जो एक्शन था वो यहीं के लोगों के लिए पार्टीजन और पक्षपातपूर्ण नहीं था, हमारे प्रति भी था। हम समाज में जो अपना स्थान रखते हैं, क्या हम शांति भंग करेंगे? हम यहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए आ रहे थे। तो इस तरीके का जो है ये सभ्य समाज के अंदर अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे रात को महिलाओं को पकड़ पकड़ करके ले जाना। मुझे लोगों ने बताया कि जबरन मजदूरी करवाना, और यदि मजदूरी करने से यदि कोई मना करता है तो कंगारू कोर्ट लगा करके और पिटाई करना, उनके साथ में बर्बरता करना। कोई अपना ठेला भी लगाना चाहता है, कोई लकड़ी का यदि अपना छोटा सा दुकान भी करना चाहता है, 25,000 30,000 की टोलाबाजी जो है पार्टी फंड में जब तक नहीं देंगे वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने बेच दिया। जिस तरीके से वो अरेस्ट हुआ, ऐसे लगा जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर जैसे वो एक तो शाहजहां होते थे बादशाह, और एक पता नहीं कितने शाहजहां होंगे इस बंगाल के अंदर इस तरीके का। अभी तो ये सामने आया है और ऐसे सवारी निकल रही थी वो शाहजहां की कि जैसे वो पुलिस को डेलीगेशन को लीड कर रहे हो। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजों का नंगा नाच जो है ये आप लोगों ने इसके अंदर देखा होगा। निश्चित रूप से मैं बहुत दुखी हूं, बहुत शर्मिंदा हूं, और इतने सारे लोगों ने जो आरोप लगाए, महिलाएं जिस तरीके से निकल करके आई है, मैं कहूंगा मानव अधिकारों का यहाँ पे जो स्थिति है बेहद चिंताजनक है। धन्यवाद। In this context, I want to salute the brave women of Sandesh Kali who have revolted against it, and this should be a lesson for all the persons who think of doing any harm to our women folk. What is more painful for us is that in a state which is ruled by a woman chief minister, such things are happening to women. Unfortunately, instead of giving a helping hand to them or consoling them, the consolation was to the perpetrators. It was very unfortunate, and in any other place, the person would have taken the responsibility to step down once the perpetration of the woman has come out and the culprit, the main kingpin, has been arrested and who has been escaping arrest with the state support. It is a very serious issue. It is a reflection on the entire state government and in particular the police administration. The responsibility should be taken by them in accordance with law.